देखिए तो मेरा भैया पुलिस थाने में इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है। मैं उनसे एक बार बात की बात, आपके माँ बाप और आपके टीचर सबसे बड़े यही है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल वितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। Father, just like in our home, our parents guides us, and same in our school, Father guidance is must. I would like to call respected Father to shower his blessings upon us. The chief guest to cut the ribbon and open the faith today. And before that, I would like to thank class 6B for choosing the beautiful topic. What is the topic? Respect to elders. Respecting the elders. Did you get the topic? Respecting the elders. Elders means who? Who comes? Elders. Answers? Mother, father and grandparents. Over? Very good. Who said that? Shashwat, na? Yes, Aksham. दर्शानयन विनय धर्मी सर्व प्रीति करो भवे. Its meaning is the modest and virtuous person who tenders the regards to the elders and affection of love of his kinsmen is loved by all. It is truly said that disrespectful person never earn respect from himself. Respect to elders is one of the most characteristic of any culture. Always respect and listen to them. In return, the blessings which we get from them is very useful in our life. Their experiences teach us many lessons in our life. So, one should always respect and listen to them. At last, I would only say, young can walk faster, but the elder knows the road. So always respect and listen to them. Thank you. Thank you, Pragya. In our busy schedule, we don't get enough time to read newspapers. So here are my friends to tell us about today's news headlines. Now some national news headlines are: India to replace military personnel in Maldives. Uttar Pradesh Assembly budget session begins on stormy note. Thank you. Several days as a small plane crash burns in Florida. Partnership with India is one of the most consequential relationships with US. Now some sports news. India Teach us to use our minds and hearts, time and talent for our good and for the good of others, and make our school a joyful home for everyone. Loving God, we entrust ourselves to you. Guide our minds and hearts and be a help to all people. Teach us to be generous in our outlook, courageous in face of difficulty, and wise in our decisions. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. So today, we have in our midst our chief guest, Mr. Deen Dayal, the Station House Officer of Sadar Ghazipur, who has accepted our invitation to inaugurate the school annual fair 2024. Dear sir, on behalf of St. John's family, we welcome you to our list. Please give a loud round of applause.
Now, I would request our chief guest for his words of wisdom. धन्यवाद। पहले तो मैं इन बच्चों से और इस प्रांगण में सभी उपस्थित आप लोगों से इस बात की क्षमा याचना करता हूं कि 10 मिनट विलंब से पहुंचा हूं, क्योंकि थाने से निकलते समय हम लोगों की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि कोई भी पीड़ित उपस्थित होता है तो पहले उसकी समस्या को सुनना होता है। ये हमारी जो वर्दी धारण किए हैं नैसर्गिक कर्तव्य बन जाता है। आप लोग सब मेरी बातों को समझ रहे हैं ना? तो इस कारण विलंब हुआ। दूसरी बात, इस अवसर पर आपने मुझे बुलाया है। पुलिस प्रशासन हम हमेशा आपकी सुरक्षा के ख्याल रखते हैं कि जितने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं सुरक्षित अपने घर से विद्यालय आए और विद्यालय से सुरक्षित अपने घर जाएं। ये आप लोगों की जो जिम्मेदारी होती है हम लोगों के कंधे पर है। तो इस अवसर पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 2 बात जरूर कहूंगा कि बच्चों, इस समय एक साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस मौके पर 2 मिनट में समझाएंगे कि साइबर अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें नए नए बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर जितनी बालिकाएं हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कोई भी आपको निभावना ऑफर या कोई भी ऐसा चीज मोबाइल पर मिलता है, इन बच्चों को अपने घर पे भी जागरूक करेंगे कि आपको जब तक लोभ नहीं दिया जाएगा तब तक कोई व्यक्ति उस लोभ के लालच में फंसता नहीं है। किसी को भी साइबर अपराध करना होता है तो आपको लालच दिया जाता है, उसी लालच में कोई व्यक्ति फंसता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि मोबाइल पर कोई भी आपको लोभपूर्ण बात आती है जिसमें आपको फंसने की संभावना है, तो आप कृपा करके उनको OTP नंबर नहीं देंगे, कोई लिंक को शेयर नहीं करेंगे। इस बात को याद रखेंगे कि अगर यदि आपको लगता है कि आपको लॉटरी लग गई है, 25 लाख का आपका कोई इनाम मिल रहा है, तो ऐसी बातें हो रही है, वो आपको इतनी मीठी मीठी बातें करता है कि उसकी मीठी बातों में आप फंस जाते हैं। आप सोचते हैं कि हमारे हित की बात कर रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अनजान है आपके हित की बात नहीं कर सकता है। आपके हित की बात आपके माँ बाप और आपके टीचर सबसे बड़े यही है। अगर आपको कोई शंका लगता है तो आप इनसे जरूर एक बार बात करें। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं ये बात सही कह रहा है, हमको OTP बताना चाहिए, हमको लिंक बता देना चाहिए, तो एक बार जरूर उससे आप शेयर कर दीजिएगा कि हमारे भैया पुलिस थाने में इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूं, फिर मैं लिंक का ओपन कर देता हूं या आपको OTP बता देता हूं, फिर आप देखिएगा उसका तेवर कैसा हो जाएगा। तो तुरंत अपनी भाषा बदल देगा। और एक बात, दूसरी बात मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा फोटोग्राफ्स कोई भी अपने मोबाइल में न रखें कि जिससे मोबाइल खो जाने पर उनके सामने समस्या खड़ी हो जाए कि मोबाइल कोई ओपन कर देगा या कोई बात होगा तो हमारे सामने कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इन्हीं छोटी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय हम जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर का ये सेंट जॉन्स स्कूल तुलसीपुर में है और आज यहां पर बाल मेले का आयोजन किया गया था। और आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों ने जो स्टॉल लगाया हुआ है और हमारे जिले के जनपद के सदर के जो SHO थे, इन बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए भी यहाँ पर आए हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। तो हमारे साथ यहाँ पर फादर हैं सेंट जॉन्स के आनंद सर। पहले तो सर आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। राज 24 न्यूज़ के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आज के दिन यहाँ पे सेंट जॉन स्कूल में जी बाल मेले का जी जो आयोजन किया जा रहा है जी और इस मेले का उद्देश्य ये है कि ये जो मेला हर साल यहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं, जी इसका उद्देश्य जो है जो भी धन यहाँ से संचित किया जाता है जी गरीब बच्चों के लिए, जी अनाथ बच्चों के लिए जी और खासकर जो ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जी और उनकी सहायता के लिए ये भेजा जाता है। जी। देखिए, सर ने बताया जिस प्रकार से यहाँ पर जो बाल मेला
ये विद्यालय भी है। विद्यालय में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और कहा जाता है कि बच्चे हमारे जो देश के भविष्य होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ संस्कार जो यहाँ पर होता है, बच्चों को बौद्धिक ज्ञान की जानकारी उपलब्ध कराना और एक ये सामाजिक कार्य जो होता है, लोगों का परोपकार करना। तो सर ने जिस प्रकार से बताया है कि यहाँ हम लोग जो जैसे जिस प्रकार से बच्चों को ये बाल मेला करते हैं, उनसे सर उनके पहली बात की जो बच्चों की मेंटेलिटी होती है दिमाग की, उससे भी ग्रोथ होता है। थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ है क्या है, और जैसे उनकी लोगों में जागरूकता भी होती है सामाजिक, जैसे आपने बताया है। तो ये कहीं न कहीं एक अच्छा संदेश है। तो जैसे सर यहाँ पर मैं देखा हूँ सारे बच्चों ने स्टॉल लगाया है और जिस प्रकार से, और यहाँ पर जैसे, तो क्या और संदेश लोगों को देंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज के दिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्कूल के सभी बच्चों को जी और अभिभावकों को, उनके माता पिताओं को जी और स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं जी और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जी इन सभी के मदद से आज का बाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। जी और वही स्वयं स्वेच्छा से इसमें आर्थिक रूप से मदद करते हुए इसका आयोजन किया जा रहा है। जी उद्देश्य जैसे मैंने कहा था कि एक उद्देश्य जैसे जो भी धन इससे संचित किया जाता है गरीब बच्चों के मदद के लिए, उनके शिक्षा के लिए भेजा जाएगा। और साथ साथ लोगों के अंदर, खासकर जो मेरे सेंट जॉन स्कूल के बच्चे हैं और जो टीचर्स हैं, इनके द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों को मदद करने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो हमने देखा, मैं देख रहा हूँ कई पिछले साल से और उसके पहले से ही बच्चे एक स्वेच्छा से सेवा की भावना की दृष्टि से आगे बढ़कर ये मदद कर रहे हैं। और इसी प्रकार मैं यही चाहता हूं कि गाजीपुर शहर के जो माता पिता हैं, अन्य लोग हैं, और इस नए कार्य में, अच्छे काम में आगे बढ़कर लोगों की सेवा करने के लिए। देखिए, मैं आपसे बता दूं, वैसे स्कूल तो बहुत सारे जनपद में हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सबसे पहले 1997 के नियर अबाउट इस विद्यालय का नींव रखा गया था। और पहले लोग जिस प्रकार से इंग्लिश लोगों की पुअर हुआ करती थी, लेकिन उस समय जब जनपद में संभवतः ऐसे स्कूल पहला था, और भी रहे होंगे जिस प्रकार से, लेकिन आज यहाँ पर मैं देखा हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ और भी, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, और भी जो पाठशाला जो लोग बोलते हैं कि अरे हाई फाई विद्यालय है, चाहे जो भी चीज़ है, तो सर ने बताया बहुत बड़ी बात है कि हम लोग गरीबों का भी मदद, जो गरीब के भी बच्चे हैं, और चाहे उस तरह से, और सबके बारे में कुछ न कुछ सोचा जाता है। तो यहाँ पर मैं भी देखा, वो साफ भी झलक रहा था। जैसे शिक्षा का व्यवसायीकरण तो मान लीजिए हो ही रहा है, लेकिन कुछ इस तरह के भी विद्यालय हैं जहाँ पर लोगों की मदद की जाती है। ये अपने आप में सेंट जॉन्स स्कूल एक मिसाल है। सर, अभी तो मान लीजिए जैसे फरवरी महीने चालू हो गए, मार्च में बोर्ड एग्जाम संभवतः होंगे, फरवरी लास्ट या एंडिंग, या तो मार्च के। बच्चे जो हैं उनके बारे में आप अब एग्जाम सर पर आ रहे हैं, और उनके गार्जियन को देखते हुए कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं तैयारी करें एग्जाम के लिए, ज़रा कुछ इसके बारे में बताइए। अभी जो भी पढ़ाई करेंगे, अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है, स्कूल का एनुअल एग्ज़ाम है, जल्दी फरवरी 19 से स्कूल का एग्ज़ाम है, एनुअल एग्ज़ाम है। उसके बाद 12 तारीख से फरवरी कक्षा 12 का बोर्ड एग्ज़ाम है, और 21 तारीख से कक्षा 10 का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम का। जो भी पढ़ाई आपने अभी तक किया है, जैसे क्लास में टीचर्स जितना भी पढ़ाएं आपको, जितना जो आपने होमवर्क किया, क्लास वर्क किया, और फिर से उसको फिर से रिवीजन करके उसी सब्जेक्ट को, उसी विषय को आप बार बार उसी को पढ़े, समझे और रिलैक्स होते जाए बिना टेंशन के, कि आपने जितने पढ़ा बहुत काफ़ी पढ़े हैं आप अभी तक, जो टीचर लोग ने पढ़ाया, होमवर्क कराया इत्यादि। जैसे कभी कभी होता है कुछ बच्चों में हेजिटेशन होता है, और वो बच्चे मैं देखता हूँ कभी
पुअर भी हो जाते हैं। डर एक होता है टीचर से चाहे प्रिंसिपल से कि हम एक बार नहीं आया तो हम कैसे पूछूं, हमको कहीं डांट देंगे, वो चाहे उनके अंदर वो भय बनी रहती है। उनको क्या संदेश आप देंगे? जी, शिक्षा अभी बोर्ड एग्जाम है, सभी के बच्चों के अंदर थोड़ा कुछ ना कुछ डर रहेगा ही, होना ही भी ज़रूरी है। लेकिन ये जो टेंशन की या एंग्जाइटी को नहीं जाना चाहिए। जो विषय आप पढ़ रहे हैं, उस विषय को आपको समझना चाहिए। समझने के बाद अपने ही शब्दों में, अपने ही भाषा में जो कुछ आपने समझा है, फिर उसी को अपना रिवाइज करते जाए। और माता पिताओं से यही मेरा अनुरोध है कि बच्चों के ऊपर दबाव ना डाले, उनको अपना समय दे, उनको समझे और उनको हमेशा एनकरेज करते रहें। चाहे कोई हर बच्चा बराबर नहीं है, ये समझना चाहिए। कोई थोड़ा सा देर पढ़ने के बाद उनको सब याद रहेगा, तुरंत एग्ज़ाम लिख पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। कोई बच्चे ऐसे भी हैं टाइम लेते हैं समझने में, पढ़ने में या एग्ज़ाम देने में। ऐसे बच्चों के माता पिता और सारे बच्चों के माता पिता कि आप लोग उनके ऊपर दबाव ना डालें, कि उनको अपना फ्रीडम दे, टाइम दे, ताकि उनके बच्चे उस जो एग्ज़ाम में बैठेंगे बहुत शांति से और किसी भी प्रकार का डर, चाहे बाहर से हो अंदर से हो, वे निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दे। अभी हम सेंट जॉन्स स्कूल में हैं और यहाँ पर बाल मेले का आयोजन किया गया आज। और देखिए तमाम बच्चे जो हैं यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए ये रिंग के द्वारा भी कुछ कार्यक्रम हो रहा है। और एक गुरुजी हैं और कहते हैं कि जैसे संस्कार बच्चों को दिया जाएगा वैसे ही बच्चे होंगे। तो यहाँ पर आज बाल मेले का जो आयोजन किया गया है, और फादर ने भी एक्चुअली यहाँ का बताया है, प्रिंसिपल ने, कि हम लोग इसलिए ही बाल मेले का आयोजन करते हैं कि बच्चों का बौद्धिक ज्ञान हो और यहाँ पर कुछ लोगों को सामाजिक तौर से मतलब जोड़ा भी जाए। और जो भी धन इससे कलेक्ट होते हैं वो गरीबों में हम लोग डोनेट करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर डीके सर हैं, आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। तो डीके सर हैं और ये इनका स्टॉल लगा है और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटमेंट हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार से खेलना है, रिंग फेंकना है। हम भी आपको दिखाएंगे। पहले तो सर आपका RA24 न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये जो आयोजन हो रहा है बाल मेले का, और ये इसका क्या उद्देश्य है, जरा इसके बारे में आप बताइए। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि ज़रूरतमंद जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको सहायता करना। और इस मेले में जो भी सहयोग रहा है, स्टूडेंट्स का रहा है, पेरेंट्स का रहा है, टीचर्स का रहा है, और जो भी इससे इनकम है वो उस तरह के लोगों तक पहुंचाया जाता है। सामाजिक कार्यों में दान दिया जाता है स्कूल की तरफ से। और इस तरह का जो कार्यक्रम है, इस तरह का मेले का आयोजन पिछले दिनों से, कई सालों से हो रहा है। और इस तरह का प्रयास जो है सेंट जॉन्स स्कूल परिवार की तरफ से जन कल्याण के क्षेत्र में एक प्रयास है। और चूँकि हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि समाज में जो भी लोग हैं उनको भी इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए और ज़रूरतमंदों को सहायता करना चाहिए। सर, जिस प्रकार से देखा जाए कि बच्चे काफ़ी वो हैं यहाँ पर, और मान लीजिए आज तो मेले का आयोजन है, अभी परीक्षा सर पर आएगा। कुछ बच्चों के अंदर ये देखा जाता है कि हिजिटेशन, डर होती है कि परीक्षा आ गया है, हम कैसे तैयारी करें। कुछ ऐसे भी दब्बू टाइप के बच्चे होते हैं कि टीचरों से दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते हैं। उनके बारे में क्या कुछ बताएंगे? नहीं, इसके बारे में ये है कि अब हमारे यहाँ स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो गया है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि हर क्लास में सिलेबस कंप्लीट है। अभी भी कुल मिलाकर 18 दिनों का डिफरेंस है जो होम एग्ज़ाम होने हैं उसके लिए, और जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए तैयारी चल रही है, रिवीजन चल रहा है। और इन बच्चों के लिए पर्याप्त रिवीजन क्लासेस लगते हैं और जो भी उनके डाउट्स होते हैं उसको क्लियर
क्लियर किए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। अच्छा, चलिए सर ने बेबाकी के साथ कुछ बताया और आप देख भी रहे थे कि यहाँ पर जो मुख्य अतिथि आए हुए थे किस प्रकार से बच्चों का उत्साहवर्धन किए थे एसएचओ जो कोतवाली के थे, और खुद ही हम भी देखेंगे अभी बच्चों से कि किस प्रकार से इसको फेंका जाता है। वो भी अपने जाल में उलझ जा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनसे भी कुछ जानना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा बेटा आपका? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, ये जो आप लोग बाल मेला का आयोजन की हो, क्या इसके बारे में क्या कुछ बताओगी क्या? आज हम लोग यहाँ पे गेम्स लगाए हैं। यहाँ पे रिंग गेम और बॉल थ्रो गेम है, और वहाँ पे हमारे शिक्षक द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं वो बम्पर प्राइज जो सबसे ज़्यादा बार खेलेगा उसको वो किताबें दी जाएंगी। और वहाँ पे बॉल थ्रो गेम है, जो उसमें जीतेगा उसको भी इनाम मिलेगा। और यहाँ पे जिस रिंग में जो भी रिंग जाएगा वहाँ पे वो आपका वो सामान आपका हो जाएगा। अच्छा, मतलब जिसका फंस जाएगा हाँ, वो आपका सामान हो जाएगा। तो इसके लिए कूपन लेकर के ही खेलना है क्या? हाँ, कूपन। अच्छा, कूपन लेकर के खेलना। देखिए बिटिया ने बहुत अच्छी बात बताया, मैं तो भूल रहा था। ये सर हैं, कवि लेखक भी हैं, और उनका देखिए वहाँ पर बुक भी लगी हुई है, और बताया है लोग कि इसके साथ जो बच्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको वो बुक मिलेगा। लिखा है वहाँ पर, चाँद में भी दाग है सुलगती हुई चिनगारी। सर तो जैसे क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, बहुत ही अच्छा है सर, और इस तरह का कार्य हम लोग करके काफ़ी एक तरह से कहा जाए कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और हर समाज में हर एक लोग का ये दायित्व होता है कि समाज में अन्य लोग हैं उनके लिए कार्य करें, उनका सहयोग करें, और बहुत अच्छी बात है। और ये स्टूडेंट्स के अंदर ये एक लेसन है और एक संदेश है, और इस संदेश के माध्यम से जब ये बड़े होंगे तो राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज के लिए कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रुकिए, हम भी थोड़ा खेल सकते हैं? बिल्कुल खेलिए, बिल्कुल खेलिए। रुकिए, देखा जाए बेटा, दीजिए तो रिंग, और उधर मेरा दो लेकर के खेलिए सर। फंसा दे। देखिए तो मेरा फंस गया। रुकिए, और किसको फंसा दूं? चीटिंग हो रहा है, उनको आगे से हम लोग यहाँ से हम लोग भी यहाँ से एक बार ले लीजिए आप। चलिए ठीक है, लेता हूँ भाई, और निकाल लीजिए अंकल जी। चोरी अच्छा नहीं मिला कोई बात नहीं। एक चासा देखिए वो भी हो गया। चलिए ठीक है, आप लोग रखिए। ये बच्चों का था भाई, हमने देखा फंस गया, और जो भी है खेल लीजिए। चलिए ठीक है, इसको भी देखते हैं। और दो बेटा बाल को ट्राई करते हैं हम, और हमें भी काफी आनंद आया भाई, देख लिया जा। इस बाल को क्या करना है बताइए? तो ग्लास को मार के गिरा देना है और गिफ्ट ले जाना है। क्या है गिफ्ट? गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, ये बैग में है, घड़ी हो सकती है, कुछ भी। पूरा गिलास ही हम ले लेते हैं। हाँ, ले लीजिए। पक्का? कैसे मारना है? एक और बॉल, एक और बॉल, एक और बॉल, आखिरी में 3 बॉल से हार गए। चलो ठीक है, और बच्चे थे, हार गए बेटा मैं। हाँ, 3 बॉल से। चलिए मैं हार गया हूँ। क्या नाम है? आकाश यादव। अच्छा आकाश, कौन से कक्षा में पढ़ते हो आप? 7th B। 7th B में। परीक्षा कब, एग्जाम कब होना है? 9 फरवरी से। अच्छा, गेम ही बस खाली दिन भर लोग खेलते हो, घर पर भी नहीं। कि पढ़ाई भी करते हो? पढ़ाई करते हैं, एग्जाम आने वाला है। एग्जाम कब होने वाला है? 19 फरवरी से। 19 फरवरी से। क्या बच्चों को और क्या कहोगे आप, बताओ आप? अच्छे से पढ़ें और एग्जाम दें। अच्छे से पढ़ें, एग्जाम दें, और मोबाइल खूब देखें। नहीं, मोबाइल थोड़ा मोड़ा देखना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं। थोड़ा मोड़ा देखना चाहिए। हाँ। मोबाइल में क्या देखना चाहिए बच्चों को बताइए? पढ़ाई करने वाला और क्या। पढ़ाई करने वाला। चलिए, झूठ बोले हो कि घर पे अपना गेम खेलते हो, ये बताओ। हम गेम नहीं खेलते हैं। पक्का? पक्का, उससे पूछ लीजिए। क्या तुम्हारा भाई है क्या? हाँ, कजी सही बोल रहा है। आ जाओ बेटा इधर। बगल में रहते हैं। ये क्या गेम खेलता है कि क्या करता है? सर थोड़ा बहुत खेलता है, मतलब खेलता नहीं है, कम से कम खेलता है। थोड़ा बहुत खेलता है, मगर खेलता नहीं है। देखिए बच्चे कितना गोल गोल करके घुमाते हैं, और आज हम आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा था कि बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं और इसमें कुछ सीखना है।
सीखना है। और विद्यालय के जिस प्रकार से गुरुजन लोगों ने संदेश दिया है और इस तरह का बच्चे भी काफ़ी कम से कम इसलिए आयोजन किया जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई के वक्त तनाव में रहते हैं तो उनका भी एंटरटेनमेंट भी होगा और लोग पढ़ाई खेल में पढ़ाई एक तरीका से पढ़ाई भी होता है। चलिए भैया, तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।